अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में हम लिसनिंग के बारे में जानेंगे। लिसनिंग क्या होती है? सुनने में और ध्यान से सुनने में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? क्या हियरिंग और लिसनिंग एक ही चीज़ है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? Hearing is a situation in which we are able to hear what people are talking. We can get to know, we can have an idea that somebody is talking to us or somebody is talking somewhere. When we are able to hear the voice, this is actually hearing. But there's a difference between hearing and listening. Apparently, it sounds same. Apparently, there should not be any difference between hearing and listening, because when we are listening, then we are trying to hear what somebody is talking. And when we are hearing, then we are actually already hearing. So, but there's a difference between hearing and listening. Hearing is when somebody is talking, that then we know that somebody is talking, and we can hear the voice. हम उस बंदे की आवाज़ को सुन सकते हैं जब कोई शख्स हमसे बात कर रहा होता है। हम ये सुन सकते हैं कि कोई शख्स हमसे बात कर रहा है, हमें उसकी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही होती है, और हम ये भी सुन सकते हैं कि वो क्या बात कर रहा है, हमें उसकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होती है। हमें वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, वो भी समझ में आ रही होती है। वो जिस रफ्तार से बात कर रहा होता है, वो बहुत प्रॉपर होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो एक अच्छे स्पीकर में होनी चाहिए, मौजूद होती हैं। बट हम सिर्फ हियरिंग कर रहे होते हैं, हम लोग लिसनिंग नहीं कर रहे होते। लिसनिंग is different from hearing. Listening is when we pay heed to what somebody is talking about. Listening is when we try to understand what the other person is talking. Listening is when we analyzing what the other person is talking. Listening is when we're trying to evaluate what the other person is talking. But when we are only hearing, we are only hearing the voice. We are not giving any importance to what the other person is talking. But when we talk about listening, when we are listening to to somebody, then we would give importance that what other person is actually talking. If there is a mistake somebody is doing in the talk, then when we are listening, we will get to know that there were faults in the communication. There were mistakes in the communication. But when we are hearing only, we will not be able to identify any faults or any false facts which were communicated because we were only hearing. तो हमें फ़र्क पता चला कि हेयरिंग में और लिसनिंग में फ़र्क है। जब हम लिसनिंग के फेज़ में आते हैं, हियरिंग के फेज़ से, तब हम बेसिकली संजीदा होकर किसी की बात को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट लिसनिंग इज़। अक्सर औक़ात क्लास में जब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और एक टीचर बात कर रहा होता है, तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो लिसनिंग कर रहे होते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हियरिंग ओनली। They're sitting in the class, they're maintaining an eye contact with the teacher, they're sitting silently, they're not creating any disturbance, they're not creating any noise, but they're hearing only. Their mind is somewhere else. Their mind is in their own memories. They are not bothered at what the teacher is telling. They are not bothered whether if whatever is being told is truth or just a false statement. They are not bothered at all. They are just there. They are just hearing. They're not listening. So when you are listening, you're paying importance. When you're listening and you get to know that there is some fact wrongly talked about by the teacher, then you are going to interrupt. You are going to interrupt the teacher and tell, hey,
sir, I think this is not how it is. Probably this is better way. I mean, there is a better way. The same thing can be said, or there is a factual mistake in whatever you have just told. So listening is very important because अगर हम सही एसेंस के अंदर कम्युनिकेशन को आगे लेके चलना चाहते हैं, अगर हम सही मानों में कम्युनिकेशन को आगे चलाना चाहते हैं, तो हमें फिर लिसनिंग करनी होगी. अगेन सिंपल सी एग्जांपल, अगर हम जॉब के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और हमसे इंटरव्यू लेने वाला कोई बात पूछता है, लेकिन हम उसकी बात को सुन सकते हैं बट हमारा माइंड उसकी बात को प्रोसेस नहीं कर रहा, जबकि हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है. सो we will not be able to answer back the question of that person who is taking our interview. Resultantly, we will flunk. We will not be successful in that interview. Why? Because we were only hearing. We were not listening. So it is very important as a student that we listen. Is it really important for the students to listen only, or is it important for the teacher to also listen properly? Well, the same goes for the teacher. If the teacher is just orating, he's just delivering his talk, while he's not paying attention to whatever questions are being asked by the students, he will not be able to respond to those questions. Therefore, listening is not only important for students but also for teachers only, for teachers as well. अगर हम लिसनिंग नहीं करते तो सबसे बड़ा डिजास्टर जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो ये होता है कि रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है. द रिलेशनशिप गेट स्पॉइल्ड नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज. चाहे वो वालिदैन और औलाद का रिलेशन है, चाहे वो सिबलिंग्स का रिलेशन है, चाहे वो दोस्तों का रिलेशन है, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, चाहे वो जज और वकील का रिलेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के लीडर और अवाम का रिलेशन है, चाहे वो अवाम और गवर्नमेंट के लीडर्स का रिलेशन है, चाहे वो मोहल्ले वालों का रिलेशन है, चाहे वो मस्जिद के जो इमाम हैं और तमाम के तमाम जो लोग बैठे हैं उनका रिलेशन है, वो किसी भी किस्म का रिलेशन है कि जिसमें एक बात करने वाला अपने सुनने वालों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, बट इफ द लिसनर्स आर नॉट पेइंग इंपॉर्टेंस टू व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, and that happens again and again, this does not stop and this keeps on happening, then this will result in devastation of that relationship. Maybe in the beginning we will have tolerance to just forgive the person for a while, but if that act of ignorance will continue, then this eventually is going to result in a disconnection between the relationship. So listening is that important, you see. So, like we discussed, that listening is important for everybody. It is important for students. It is important for teachers. It is important for parents. It is important for children. Because no matter what relationship we are in, if we are not listening to whoever is talking to us, then eventually we will spoil our image and we'll spoil that relationship. Many times there are informative things being told to us. Many times, for example, you are driving on a road and at some spot you find out that there is some announcement taking place, and you also notice that there are people giving importance to that announcement, and you also see that there are cars taking U-turn, but you do not pay importance to all these various things which you get to find. You did see a person doing the announcement. You did see on the road people paying attention to that person who is talking, and you did notice that there were cars taking U-turn, but you did not pay heed to nothing of these important ideas, nothing of these important signals which were trying to tell you something, but you kept on moving. Eventually, after crossing certain
long distance you got to know that the road is blocked. But now the damage has been done because you have traveled a long way to reach at that spot where there is a roadblock. Now you have to take a U-turn and there is a long distance which you have to cover. And you also got to find that while taking the U-turn, there is a big damage on the other side of the road which is taking you back to the spot. Now you're stuck in that situation. Therefore, it is very important that you not only pay attention to what a person is talking, but you also try to listen to what other person is talking. Hearing is not important, listening is actually important. जब आप एज ए पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ चीज़ एडवाइस करता है, डॉक्टर आपको कुछ खाने से रोकता है, कुछ पीने से रोकता है, मगर आप डॉक्टर की कही बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप सिर्फ इस चीज़ पे बॉदर्ड होते हैं कि मुझे सिर्फ मेडिसिन लेनी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन को लेकर आ जाते हैं, मेडिसिन को खाना शुरू करते हैं, मगर आपको पता चलता है आप तो ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताई थी, अगर आपने सुनी नहीं। डॉक्टर्स ने आपको कुछ खाने से मना किया था, मगर आप तो खाते रहे। डॉक्टर ने आपको कुछ पीने से मना किया था, मगर आप तो पीते रहे। आपने सिर्फ सोचा कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ या मेडिसिन ले रही हूँ तो मैं सही हो जाऊंगी या सही हो जाऊंगा। बट that medicine, along with that medicine, there was another important thing we had to pay attention to, and that was the advice which that doctor was giving to us. Therefore, it is very important that we give importance to the person who is trying to communicate us a message. वो पेशेंट सिर्फ तब सही होगा जब वो ना सिर्फ मेडिसिन लेगा बल्कि उसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेगा। डॉक्टर ने अगर आपसे कहा कि आपने मेडिसिन को दिन में 4 मरतबा लेना है और आपने डॉक्टर की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी और आपने मेडिसिन को सिर्फ एक दफ़ा लिया, तो वो मेडिसिन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। आपने सोचा कि दवा के जो बॉक्स है उस पर लिखा हुआ था दैट यू हैव टू यूज दिस मेडिसिन फॉर वंस इन अ डे, बट यू डिड नॉट पे इम्पोर्टेंस to the advice which was given to you by the doctor. Therefore, it is very important that we give importance to what we are told by the doctor. Therefore, this is one good example of a situation in which there is something being told, but we are not paying attention to whatever is being said. इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे आप घर पे हैं, आप घर पे बैठे हैं और आपको बाहर कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, मगर आप कोई ध्यान नहीं देते, आप बिल्कुल भी उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होते कि क्या कहा किसने, और आप कुछ देर के बाद आप गाड़ी लेते हैं, बाहर जाते हैं और आपको पता चलता है आप तो गिरफ्तार हो गए। तब आपको पता चलता है कि जो अनाउंसमेंट थी वो बेसिकली कर्फ्यू के लिए थी। कुछ अनाउंसमेंट हुई थी कि अब से लेकर 2 घंटे तक घर से बाहर कोई भी ना निकले, क्योंकि 2 घंटे तक कोई प्रोसेस है जो कि सड़कों पे किया जा रहा है या कोई स्प्रे है जो सड़कों पे किया जा रहा है, अगर किसी बंदे ने वॉल्यूशन की तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर आपने उस अनाउंसमेंट को सुना ही नहीं, दो कि आप सुन सकते थे मगर आपने उसको अहमियत ही नहीं दी। ये एक और एग्जाम्पल है ना सुनने की वजह से नुकसान उठाने की। लापरवाही हमें कब्र के गड्ढे तक पहुंचा सकती है। इस वजह से लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी। नाउ as we have already know now that it is very important that we listen to things. So there are certain approaches which are there for listening. लोगों के सोचने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, इसी तरह लोगों के सुनने के भी बहुत से अंदाज होते हैं। Like there are different ways people think and talk, there are different ways people also listen. There are different approaches which people have for listening. In the first approach, the person is only completing the formality. पहली अप्रोच के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही होती है और बंदा सिर्फ बैठ के किसी बंदे की बात को सुन रहा होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वो क्लास में होंगे, उसको टीचर की आवाज़ भी आ रही होगी, तमाम की तमाम इन्वायरमेंट प्रॉपर होगी, बट
स्टूडेंट क्लास में सिर्फ बैठा हुआ होगा, वो प्रॉपरली सुन नहीं रहा होगा। सो एक तो हेयरिंग थी, हेयरिंग में तो सिर्फ आपको इतना पता है कि आवाज़ आ रही है कोई। लिसनिंग में, ये लिसनिंग जो पहली अप्रोच है जिसमें आप सिर्फ you listen through ear only, through your ear only. In this approach, आप hearing के स्टेप से एक स्टेप आगे हैं, आप उस बात को प्रॉपरली सुन रहे हैं जो बात कही जा रही है, लेकिन उस बात को सिर्फ आप सुन रहे हैं। That's it, nothing else. You are not doing any analysis, you're not doing any evaluation, you're just listening to that voice which is being said, and that you can listen properly. वो जो आवाज़ आपको आ रही है प्रॉपर आ रही है और आप उस बात को गौर से सुनना चाहते हो और आप सुन भी रहे हैं। You so in this scenario, when you're not involving any other senses of yours, you're just listening to what is being said, exactly the way it is being said, with having no utilization of nothing else. You're listening through your ears at that time. एक अप्रोच है, इसको पैसिव लिसनिंग भी कहा जाता है, जिसमें आप सुन रहे होते हैं और आप पैसिवली सुन रहे होते हैं। आप सिर्फ जो सामने वाला बंदा कह रहा होता है उसको ब्लाइंडली सुन रहे होते हैं आप, थिंकिंग जो भी कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, और आप इस पे बॉदर्ड नहीं होते कि कौन कह रहा है क्या कह रहा है। बस आपको ये पता होता है कि कोई बंदा कह रहा है, मुझे सुनने के लिए जाना है, तो वो जाता है, बैठता है, सुनता है। बट कोई भी मतलब कोई भी खातून बैठती हैं, जाती हैं, सुनती है, लेकिन वो इसी के बारे में बॉदर्ड नहीं होते कि जो कहा जा रहा है आया कि वो दुरुस्त भी है या नहीं। Therefore, it is important that we use the better approach of listening. The first approach of listening is listening through ear. मतलब आप सिर्फ अपने कान से एक बात को सुन रहे होते हैं। Second approach of listening is listening through eyes. इस वाली अप्रोच के अंदर एक जो लिसन है थोड़ा इंटेलिजेंट है। लिसनिंग थ्रू ईयर में आप सिर्फ किसी शख्स की बात को सुन रहे थे और पैसिवली सुन रहे थे, कोई भी अपना एनालिटिकल सेंस इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, जबकि लिसनिंग थ्रू आइज में अब आपने अपना एक सेंस ऐड किया। आपने लिसनिंग थ्रू आइज में किसी शख्स को जब आप सुन रहे थे, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना शुरू किया। आपने नोटिस किया कि कोई शख्स बात तो कर रहा है, बट वो जो शख्स बात कर रहा है उसकी आवाज़ बेसिकली बहुत वीक है, और कोई शख्स बेसिकली कम एनर्जीज के साथ बात कर रहा है, तो कि उसकी आवाज़ लाउड इनफ है बट नॉन एनर्जेटिक वॉइस विच गिव्स यू एन इम्प्रेशन as if the person is not at all interested in that talk which that person is actually giving. या आप नोटिस करते हैं कि कोई शख्स मैसेज तो दे रहा है बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। कोई बंदा किसी से बात तो कर रहा है बट मुस्तकिल इर्द गिर्द देख के बात कर रहा है, वो बॉदर्ड नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि सामने वाला बंदा उसकी इस हरकत के बारे में क्या सोच रहा होगा, वो कितना परेशान होगा सामने वाला बंदा। वो सिर्फ इसी में बॉदर्ड होता है कि मैंने इस बात को कम्युनिकेट करना है, दैट्स इट। वो सिर्फ उस बात को कम्युनिकेट करने के बारे में बॉदर्ड होता है, और उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि सुनने वाला मेरी इस हरकत को, जिसके अंदर मैं कोई आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, इसको किस तरीके से ले रहा होगा। तो लिसनिंग थ्रू आइज के अंदर एक लिसनर थोड़ा इंटेलिजेंटली चीज़ों को देख रहा होता है। वो ना सिर्फ आवाज़ को सुन रहा होता है बल्कि उसके साथ साथ सामने वाले स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को भी इवैल्यूएट कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच टू लिसनिंग। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें अपनी लाइफ में मिलती हैं। जब टीचर किसी क्लास को लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, टीचर जब बेसिकली किसी क्लास को लेक्चर डिलीवर करता है और उस डिलीवरी के टाइम पे वो नोटिस करता है कि क्लास के अंदर लोग बैठे तो हुए हैं और खामोशी बैठे तो हुए हैं, लेकिन कुछ लोग आंखें बंद करके ना कोई बात कर रहे हैं और ना ही किसी चीज़ को बज़ाहिर प्रॉपर सुन रहे हैं, तो आपको रियलाइजेशन होती है कि लोग सो रहे हैं। लाइकवाइज जब कोई स्टूडेंट इस चीज़ को नोटिस करता है कि टीचर पढ़ा तो रहा है, टीचर की
आवाज़ में ओरेटरी तो है, बट अगर आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि टीचर पढ़ाने के साथ-साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके मैसेजेस को सपोर्ट नहीं कर रही, तो टीचर का मैसेज ज़रा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। स्टूडेंट का ध्यान बहुत कम हो जाएगा। जिसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो बहुत सारी हैं, जो बेसिकली स्पीकर के कहे मैसेज से इन लाइन नहीं हो रही हों। आप ऐसी सिचुएशन को डिस्ट्रैक्टेड सिचुएशन कहेंगे। एक एग्ज़ाम्पल जिसको आप कह सकते हैं कि जो एक रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल है कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपको लेक्चर दे रहा है कि मौसीकी बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं मौसीकी सुननी चाहिए। इतने में उसका मोबाइल बजता है और एक हिप हॉप ज़बरदस्त वाला सॉन्ग बजता है और वो मौजूदा दौर का बेस्ट सॉन्ग होता है, जो कि बहुत इन सॉन्ग होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो बंदा मैसेज दे रहा होगा, उसकी बात में वो वज़न नहीं रहेगा जो कि बेसिकली होना चाहिए। इसमें आपने लिसनिंग थ्रू एयर की। हम जब लिसनिंग थ्रू एयर कर रहे हैं, उसके साथ जब हम लिसनिंग थ्रू आइज़ में भी जाते हैं, तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कोई शख्स जब कोई मैसेज दे रहा है, तो उसके मैसेज देने के वक़्त उसका जो मैसेज है, वो मैसेज उसकी बॉडी लैंग्वेज से सपोर्टेड नहीं है। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। लिसनिंग थ्रू आइज़ में आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो बंदा मैसेज दे रहा है, आया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली है या नहीं। अगर कोई बंदा कोई सैड या दुःख की बात कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी के असरात हैं, तो लिसनिंग थ्रू आइज़ के अंदर यू विल नॉट पे इम्पोर्टेंस टू व्हाटएवर मैसेज दैट पर्सन इज़ गिविंग यू। You will be rather bothered that why is that person smiling? Or if somebody is trying to give you a happy message, but there is very sad expression on his face, you'll be more bothered that okay, no matter that person is giving me this appropriate verbal message, but why there is this contradiction in the expressions of that person. You will get to know that the person is trying to communicate me a happy and sincere message, but the facial expressions are not supporting the verbal message. So it is very important that our verbal messages, non-verbal messages, are supporting our verbal messages. Listening through mind. This is another approach to listening. Listening to mind की जब हम बात करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम पैसिव लिसनर होने के साथ-साथ अगर हम चाहें, तो हम एक्टिव लिसनर भी हो सकते हैं। Now, what is the difference between this passive listening and active listening? Passive listening ये है कि आप सिर्फ सामने वाले बंदे की बात को सुन रहे हैं. You're not bothered whatever that person is talking about. You're more bothered about your presence there and your own things which are running in your mind. You are not giving importance to that person, whatever that person is actually talking. So, in listening through mind, you not only give importance to the body language which you were doing in listening through eyes, but you also give importance to the message which that person is giving you, delivering you. Listening through mind is being an active listener. आप इस चीज़ के बारे में ध्यान करते हैं कि सामने वाला बंदा जो आपको मैसेज दे रहा है, आया कि वो मैसेज appropriate मैसेज है या नहीं है. When you are listening through mind, then you are bringing in your intelligence as well. You are evaluating the message which is being communicated to you. You are finding out the flaws in that message. For example, if somebody tells you that there is
a very shining sun out there right now. But when you are listening through your mind, you will tell the same person that no, the weather is very cloudy right now, so there is no sun out there right now. So listening to mind is evaluating the message along with listening. Listening to through mind is you are not only listening to what the person is giving you verbal in the form of verbal message, but you're also listening through your eyes. You are paying importance to the body language, facial expressions, and you're also giving importance when you listen through your mind. You also give importance to the message which is being delivered and communicated to you. Listening through mind, आप इवेल्युएट करते हैं. जब भी आप इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते हैं तो वहाँ पे आप लिसनिंग थ्रू माइंड कर रहे होते हैं. जहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आप लोग में से अक्सर लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते होंगे, कई लोग अभी जाएंगे, उनकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन होगी. आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के लिए बुलाया जाएगा. आपको अंदाज़ा होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस टॉपिक का कोई सोल्यूशन लेकर आएँ. इस टॉपिक के सोल्यूशन के लिए आपको कहा जाएगा कि हम वी आर कॉलिंग 8 people from 8 different departments, people from IT, marketing, sales, accounts, finance, and research, and these various departments will be the resources of these various departments will be sitting there. So आप बेसिकली आपको कहा जाता है कि आपने यहाँ पे किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो इस कंडीशन में जब लोग आपस में बैठ के किसी मामले पे डिस्कशन करते हैं, दे ट्राई टू रीच एट अ कंसेंसस फॉर दैट सॉल्यूशन, देन यू डू एक्टिव लिसनिंग. देन यू नॉट ओनली लिसन थ्रू योर ईयर्स, यू ऑल्सो लिसन थ्रू योर आइज, यू ऑल्सो लिसन थ्रू योर माइंड. बिकॉज इस कंडीशन के अंदर, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर, आप क्या कर रहे होते हैं, आप सामने वाले बंदे की बात को सुनते भी हैं और साथ साथ इवैल्यूएट करते हैं. जब भी कोई बंदा किसी चीज़ के लिए सोल्यूशन दे रहा होता है, आप उसका प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन अपने जहन में आप रन करते हैं और आप देखते हैं कि आया कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन ज़्यादा प्रैक्टिकल है भी या नहीं. एक एग्जांपल ये है कि अगर आपको पता चलता है कि भाई स्कूल के बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो यू कैन नॉट, और कोई बंदा कहता है कि भाई स्कूल के बच्चों को बाइक्स दे दें ताकि वो टाइम पे स्कूल पहुंचना शुरू हो जाएं, तो फिर आप उसको मना करते हैं कि बहुत छोटी एज के बच्चे अगर आप उनको बाइक देंगे तो उनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वो उनके पास लाइसेंस नहीं होगा उस बाइक को चलाने का, बाइक को ऑपरेट करने का. देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ गुड सजेशन. बाइक देना किसी छोटे बच्चे को जिसकी एज बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है. तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंट लिसनिंग कर रहे होते हैं और आप यू आर लिसनिंग थ्रू योर माइंड. कोई बंदा कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन देता है किसी सिचुएशन का, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और अगर आप इंटेलिजेंट लिसनर हैं तो आप इवैल्यूएशन करके बता सकते हैं कि ठीक है, अभी आपने मिसाल के तौर पे कहा कि आप इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे. लेकिन जब कोई बंदा इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करता है तो फिर आप फ़ौरन उसको काउंटर आर्ग्यू करते हैं. आप कहते हैं कि नहीं, अगर आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो इस तरीके से लोगों को कम पैसों में लोन अवेलेबल हो जाएंगे, और जब कम लोगों के कम पैसों में लोन अवेलेबल हो जाएगा, then people will have more money in their pockets. When people will have more money in their pockets, they will have more buying power. So eventually they'll go into the markets and they will order something. And when there is going to be more demand of things in market, there is going to be more inflation. So if you really want to cut down inflation, then there should be a cut down in demand as well. तो फिर आप ये अपनी इवैल्यूएशन करके बताएंगे कि भाई आप सिर्फ इन्फ्लेशन, सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट को कम करके आप किसी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल शायद ना कर पाएँ. देयर शुड बी सम मोर सपोर्टिंग फैक्टर्स देयर, जिनकी मदद से कंबाइनली आप किसी इन्फ्लेशन को जाके कर्टेल करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट का कम करना कैन नॉट बी अ वेरी फ्रूटफुल सोल्यूशन, बिकॉज इफ यू विल जस्ट कट डाउन इन द इंटरेस्ट रेट, still people will have more money available through banks in the shape of loan, and through that they'll have more money in their pockets, and they will still go to the markets and they will still come up with their demands, and that will still continue increasing the price of certain things. So the more the demand is, there is going to be more increase and more hype in the prices. So this is an example of listening to mind, कि जिसके अंदर आप किसी भी इवैल्यूएशन को ना सिर्फ सुनते हैं कानों से, बल्कि उसके साथ साथ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करते हैं. उसके साथ साथ आप यू ऑल्सो लिसन थ्रू योर माइंड.
आप जिसमें एनालिसिस भी करते हैं। नाउ another form of listening, another approach to listening is listening through heart. Now what is listening through heart? Listening through heart is listening with empathy, listening with emotions. Because many times क्या होता है कि जब भी किसी शख्स ने कोई डिसीजन लिया होता है किसी सर्टेन सिचुएशन के अंदर, तो हम आउटराइटली उस शख्स के बारे में एक जजमेंट पास करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये डिसीजन जो शख्स ने लिया गलत डिसीजन लिया। बट उसकी जगह एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग ये होगी कि हम उस शख्स के शू में एंटर हों और वी शुड ट्राई टू असेस दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग व्हिच दैट पर्सन टुक दैट डिसीजन। Because many times there can be a sane person, but he may be taking an abrupt decision. That depends upon the kind of circumstances the person is stuck in at that time. So when you are listening through your mind only, so फिर आप उस वक्त emotions के बारे में बिल्कुल bothered नहीं होते, आप सिर्फ ये चीज़ के बारे में bothered होते हैं कि भाई ये जो चीज़ हुई है गलत हुई है। आप सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, आप सही गलत की कैलकुलेशन के हिसाब से किसी चीज़ को सही और किसी और गलत चीज़ को गलत कह रहे होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लिसनिंग थ्रू योर heart, then you not only evaluate the situation from your mind only, but you also be empathetic. You also enter into that situation. You also enter into the person's shoe to analyze and assess okay, what were those circumstances during which that person took that decision. Because किसी भी शख्स का अगर कोई certain decision उसकी normal life के decisions के patterns के मुताबिक नहीं है, तो जो भी कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा वो उस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि भाई वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिनके अंदर किसी भी शख्स को कोई सर्टेन डिसीजन लेना पड़ा। सो लिसनिंग थ्रू हार्ट में यू आल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस द पर्सन वाज इन व्हेन दैट पर्सन टुक द डिसीजन। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट अप्रोच टू लिसनिंग, एंड in this approach you listen through your heart. So we have discussed listening through ears, listening through eyes, listening through mind, and listening through heart. So these are the different approaches we give to listening. But there are also barriers to listening. हम जब किसी की बात को सुनने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई मरतबा बैरियर्स भी होते हैं। वो बैरियर्स क्या है? कई मरतबा जब कोई शख्स हमसे उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है कि जो लैंग्वेज हमारी समझ से बाहर है, तो दिस इज़ वन बैरियर टू कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी ऐसी लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ पे वो बोली जाती है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में अगर आप उस लोकेलिटी के लोगों से बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज बिकॉज द लोकेलिटी वेयर यू आर टॉकिंग, पीपल लिविंग इन दैट लोकेलिटी डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। बेस्ट एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ से जाते हैं, आप किसी ऐसे आप फ्रांस चले जाते हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, समझी जाती है, और वहाँ जाके उर्दू में बात करना शुरू कर देते हैं, तो आप भले ही कितना इंटेलिजेंट मैसेज डिलीवर कर रहे हो, उस इलाके के लिए, उस एरिया के लिए, उस रीजन के लोगों के लिए वो मैसेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज व्हाटएवर यू आर टॉकिंग दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। सो लैंग्वेज इज वन बैरियर इन कम्युनिकेशन। एक और कम्युनिकेशन के दरमियान जो बैरियर आ जाता है, लिसनिंग में जो बैरियर आ जाता है, वो बेसिकली नॉइज़ है। कई मरतबा कोई शख्स किसी छोटे से मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। एक्सेसिव टॉकिंग इज ऑल्सो वन बैरियर टू लिसनिंग। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा रखना चाहिए कि किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हम कितने अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं। सो एक्सेसिव टॉकिंग इज ऑल्सो वन बैरियर टू लिसनिंग। कई मरतबा हम किसी शख्स के बारे में, उसके बारे में पहले हमने राय कायम कर रखी होती है कि ये शख्स ये तो ऐसी ही है या ये तो ऐसा ही है, और ये हमारा एक नेगेटिव ओपिनियन किसी के बारे में होता है जिसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। तो जब हमारे जहन में प्रेजुडिस होता है किसी शख्स के बारे में, तो भले वो शख्स कितना ही अच्छा मैसेज आपको दे रहा हो, हमारा उसके मैसेज पे ध्यान नहीं होता, हमारा सिर्फ उस प्रेजुडिस पे ध्यान होता है। हमारे जहन में होता है कि नहीं यार, ये शख्स से तो हमें इस वजह से हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑपिनियन, हमारा इख्तिलाफ है। सो बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट you do not give importance to the message and you only give importance to the prejudice. So जो prejudice है, this is also another important barrier to listening, क्योंकि कोई शख्स आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है और वो किसी जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ बोलियाँ बोली जाती हैं, और अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे पश्तो है या पंजाबी है या बलोच है या उर्दू बोलने वाला है या सिंधी बोलने वाला है, और आपके जहन में ये ख्याल है कि नहीं, मैंने
किसी और इलाके के बात करने वाले की बात को सुनना ही नहीं। तो ये प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस इसलिए है क्योंकि आप भले वो बंदा कितना अच्छा मैसेज कैरी कर रहा हो, अगर हमारे ज़हन में ये है कि भाई मैंने किसी सराइकी बंदे की बात को सुनना ही नहीं है, तो आपने प्रेजुडिस पाला हुआ है किसी शख्स के बारे में, हो सकता है वो बंदा कितना इंटेलिजेंट हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप जो लिसनिंग के टाइम पे जब आप किसी बंदे की बात को सुने तो प्रेजुडिस आपके ज़हन में बिल्कुल भी ना हो। डिस्ट्रैक्शंस, आप जब किसी बंदे की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, बीच में बहुत नॉइज़ है, आप कहीं चलते हुए बात कर रहे हैं, कि बहुत शोर हो रहा है, ट्रैफ़िक बहुत तेज़ चल रहा है, आपका ध्यान ट्रैफ़िक पे है, या साथ-साथ में आपको टेलीविज़न शो चल रहा है, या और भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी एक एक बैरियर है लिसनिंग के अंदर। इसके साथ-साथ कई मर्तबा आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बात करने वाले और बात सुनने वाले के दरमियान, बिकॉज़ कई मर्तबा आप जो बात कहना चाह रहे होते हैं, वो बात उस बात को कम्युनिकेट करने के लिए आप जिन अल्फ़ाज़ का चुनाव करते हैं, वो प्रॉपर नहीं होता। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगेन रीजन्स की मैनी टाइम कुछ लोकेलिटीज़ के अंदर कुछ अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं, जो कि उस इलाके का नॉर्म होते हैं, लेकिन वही अल्फ़ाज़ किसी दूसरे इलाके के अंदर अब्यूज़ के मानी में लिए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बात करें, बातचीत करें तो किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो रही हो। बिकॉज़ अगर आपने मैसेज प्रॉपर यूज़ नहीं किया, जैसे हमने पॉजेज़ की एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में डिस्कस की थी, कि अगर आप पॉजेज़ को गलत यूज़ करेंगे तो मैसेज का ऑल टुगेदर मीनिंग जाके चेंज हो सकता है। जैसे रुको मत जाओ या रुको मत जाओ। तो इन पॉजेज़ का गलत यूज़ करके आप ऑल टुगेदर मैसेज को चेंज कर देते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अगर कोई शख्स बात कर रहा है और आप उसको मुस्तकिल इंटरप्ट किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी और आपको कोई मुस्तकिल डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो फिर भी आप उस किसी जो शख्स आपसे बात कर रहा है, उसकी बात को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे। दिस इज़ अनदर बैरियर टू लिसनिंग बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू गिव फोकस टू समबडी बट you are being distracted by so many other factors out there. So therefore, this is another reason why you will not be able to understand the core meaning of that message which the person is trying to deliver. एक और वजह बैरियर टू लिसनिंग में आ जाती है फेक अटेंशन की। जब आप किसी की तरफ ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं या अ, ऐसा रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कहने वाले को सुनने आई मीन स्पीकर को कि आप उसकी बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं बट आप किस तरफ बात का ध्यान नहीं दे रहे होते। तो ये भी एक सिचुएशन है फेक अटेंशन की सिचुएशन। फेक अटेंशन के अंदर भी जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बात जो लिसनर है वो उस बात को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रहा जो कि जिस अटेंशन को उसको देना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो फेक बैरियर टू लिसनिंग। इमोशंस भी आपकी बैरियर टू लिसनिंग के अंदर आ जाते हैं बिकॉज़ कई मर्तबा आप किसी बात को सुन रहे होते हैं तो कई बातों में आप जज़्बाती हो जाते हैं, कुछ बातों को सुन के जिसकी वज़ह से आपकी जो फ़ोकस है वो ड्रिफ्ट अवे हो जाता है और आप उस बात को प्रॉपर्ली सुन नहीं पाते। उस बात के किसी एक पोर्शन को लेके आप बहुत जज़्बाती हो जाते हैं और आप उन जज़्बात में इतना बह जाते हैं कि बाकी मैसेज को नहीं सुन पाते। तो दिस इज़ अनदर रीज़न। ये भी एक और वजह है बेसिकली आपकी जो अटेंशन के की डाइवर्ज होने की। फ़ियर एक और बड़ा खतरनाक रीज़न है जिसकी वज़ह से हम किसी बात को समझ नहीं पा रहे होते। लिसनिंग का एक और बहुत बड़ा फ़ियर है। फ़ियर की डेफ़िनेशन है फॉरगेट एवरीथिंग एंड ड्राइव FEAR। जो दूसरी जो बड़ी बेहतरीन डेफ़िनेशन है वो है FEAR। F फेस, E एवरीथिंग, A एंड और राइज़। फ़ियर, फेस एवरीथिंग एंड राइज़। फ़ियर, I mean there are two responses to fear. Forget everything and run away or face everything and rise. So you always should face everything and rise. So ये भी एक बैरियर है लिसनिंग के अंदर। So विद दिस हम लोगों ने काफ़ी सारे ये बैरियर्स डिस्कस किए जो कि आपको सुनने में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर लिसनिंग के अंदर आते हैं। So हमने इस चीज़ को जाना कि भई क्यों सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं, तो हम कई मरतबा अपनी लाइफ़ को जाके खो देंगे, ठीक है? कई मरतबा हमारी लाइफ़ सेविंग अनाउंसमेंट्स हो रही होंगी लेकिन हम सिर्फ़ क्योंकि किसी बात को प्रॉपर्ली नहीं सुन रहे होंगे, तो उस वजह से हम उस बात को की तरफ ध्यान ना देके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी अ सीरियस लिसनर and we try to understand that message which the other person is trying to communicate us. So with this हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर लिसनिंग का खत्म हुआ। आई होप आपने इस लिसनिंग के चैप्टर को प्रॉपर्ली सुना होगा। आई होप इस आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आई होप आपने जो इस लेक्चर में लर्न किया आप इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। सो until next lecture,
अल्लाह हाफिज़।